मैं बैंडस्टैंड पर रहता हूँ, तो हमारे घर के सामने समुंदर है। तो बचपन से देखते थे हम लोग वहाँ पर कि वहाँ के जो रहने वाले हैं चिम्बई के, दे यूज्ड टू गो इन द ओपन ऑन द सी। सो वो मुझे बहुत खटकता था। द women, the children, old ladies, young ladies going in the open, which I just couldn't handle that. फिर जब हाईवे से आते थे तो वहाँ पे नाले के ऊपर you could see a lot of people sitting down there. It's a bad visual, छाता खोल के, it's a very embarrassing visual. And I used to keep on wondering कि ये कब बंद होगा। एंड ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से प्ले करती आ रही थी कि इट इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग फॉर अ मदर, फॉर अ वाइफ, फॉर अ सिस्टर इन लॉ, फॉर डॉटर टू गो आउट इन द ओपन, क्योंकि उनके पास टॉयलेट्स नहीं है उनके घर में। सो दिस वॉज माई थाट। और फिर then sir came up with this idea and I want to be a part of it क्योंकि ये मेरा personal experience रहा है। I think for a lady, for a woman, it is the most embarrassing thing to go out in the open, and for their husbands, for their fathers, it's even more embarrassing that they cannot provide the women of the house a toilet. मजबूरी है। अब BMC is giving a lot of mobile toilets and I want to be a part of this. I request sir that can I be a part of this, and ये नहीं कि सिर्फ नाम आए। इन्हें होता है कि नाम दे दिया और फिर एक फ़ोटो सेशन हो गया और निकल लिए वहाँ से। Usually this happens a lot. जैसे कि ये स्वच्छ भारत में भी वो became a very big hype in the beginning. उसके बाद सब अपने अपने रास्ते लग गए। We still do it on Twitter. Whichever place that I'm shooting at, वो हम लोग उसको साफ कर देते हैं। We make sure that there's no कचरा, there's no plastic, there's no anything there. Alvira takes care of all the garbage at Carter Road. My father does it at Bandstand. So we're still on that program. Why? Because it's our country. We should respect that. And we should not think that this is somebody else's country. Our country is our home. And Maharashtra for me is not only my Karma Bhumi, but it's also my Matra Bhumi. So where I live, as much as I can see, whatever I can do, I need to do that. My bedroom is my bedroom, but as soon as I come out of my bedroom, becomes my living room, and that is the whole country. So we basically, we call, the sweepers, all जितना भी गटर के अंदर लोग काम करते हैं, टॉयलेट्स वगैरह, we call them कचरा वाला। कचरा वाले वो नहीं है, कचरे वाले हम लोग हैं। ये जो हम लोग जो कचरा फेंकते हैं वो साफ़ करते हैं हमारा कचरा। And the amount of people are working in BMC is phenomenal. And they एक छुट्टी नहीं मिलती उनको, दिन भर काम करते, रात भर काम करते, और हम भी उनका काम बढ़ाते हैं। हम कचरा फेंकते जाते हैं। बाहर जाओ, हिंदुस्तान के बाहर जाओ, दुबई चले जाओ, लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, सेम लोग छुट्टी पे जाओगे, काम पे जाओगे, वहाँ पे ये करोगे, करके दिखा दो भाई, 2 जूते पड़ेंगे वहाँ पर, ऐसा करोगे तो। So we are scared to do that there. We don't do that there. We panic. But here,
फेंको, फेंकते जाओ. So we need to control that about ourselves. कि जो आदमी काम कर रहा है हमारे लिए सुबह से लेकर रात तक के, छुट्टी नहीं ले रहा है, उसके लिए ना न्यू ईयर है, ना क्रिसमस है, ना ईद है, ना दिवाली है, वो दिन भर रात भर काम किए जा रहा है. So about 22,000 people, 30,000, 30,000 लोग महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं, मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं to see that Mumbai is clean. और हम लोग क्या करते हैं? We like to see Mumbai dirty. So now this खुले में जाना, it's not cool at all. अब लोगों की मजबूरी है, अब वो मजबूरी इतने टाइम से आ रही कि वो माइंडसेट हो गया है. बट वो माइंडसेट को चेंज करना है. You need to use the toilets which the BMC is giving. I am putting in some money and it's hard-earned money. So please appreciate that. This is what we want for the women, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, कि ये उनको privacy मिले. तो ये प्लीज़ जब ये टॉयलेट्स लग जाएं एंड प्लीज़ इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल कीजिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए. It is up to you when you leave that toilet, it has to be clean for this project to survive. हम तो डाल देंगे, लेकिन मेंटेन आपको करना है. Think of this as your own toilet and think of the next person using that bathroom. Anyone wants to ask any questions? Sure, sir. I'm better at that. The ladies' toilet is still lacking. There's no ladies' toilet. There's no sanitary pad facility available. So, what is your step on that? I mean, would you like to see that? Yes, 100%. As many toilets as Mumbai needs, I think we should provide that. So mobile toilets also, because of a lot of restrictions. You can have normal toilets as well, but then CRZ is there, and a lot of other land construction. So these are not like mobile toilets, like mobile toilets. They're like full, containers which are there, which and are like 5-star toilets. They're really good. I will use them. I'll be the first one to use them. So some के charges होंगे बहुत ही nominal, बहुत ही minimum होंगे. That's also to maintain. और बाकी के free होंगे. So जहाँ I think 78 spots डिसाइड किए गए थे जहाँ पे टॉयलेट्स की सख्त ज़रूरत है, जिसमें से अब बचे हैं 21 बचे हैं. जी, वो वहाँ पर ठीक हो गया, वहाँ पर अब कोई नहीं जाता. They've all got their own toilets, so open defecation वहाँ पर बंद हो गया है. So that's good. जी, अब वो बंद हो गया है. That's काफ़ी टाइम से बंद हो गया है सब. I think about 15-20 years ago. Yeah, they used to happen. ये मैं अपने बचपन की मेमोरी बता रहा था. अब नहीं है वहाँ पर सब अच्छा कर रहे हैं, सब ने अपने अपने टॉयलेट बना लिए, लेकिन बाकी के मुंबई के अंदर वो अभी भी है जो कि दिखता है, जैसे कि फिल्म सिटी के बाहर आरे में. So I think that's also going to be one of the locations. सलावा में आप ही का टॉयलेट जो आपने दिया है, ये कोलाबा मछलीमार कॉलोनी में जो लगा है, आप ही का दिया है. सर ये जो टॉयलेट्स आप दे रहे हैं, आप करोगे साफ? आप करोगे साफ? नहीं, अगर जूस करोगे तो करोगे साफ. कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. सलमान जी से हमने जो विनती की है वो ओपन डिफिकेशन जो है उसको बंद करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया हमने. मैं तो कहूँगा कि खुद ही आए सामने. हमने क्या बनाया, तो खुद ही सामने आया. उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछें स्वच्छता में अगर सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अगर है
तो ये ओपन डिफिकेशन उसके दोनों भाग हैं। एक कि अगर टॉयलेट नहीं है तो जैसे सलमान जी ने कहा वो उसकी मजबूरी है, वो कोई शौक से नहीं भाग जाता। तो सबसे पहला काम है उसको टॉयलेट देना, और टॉयलेट देने के बाद जो इतने सालों की आदत पड़ी हुई है उसको तोड़ना कहीं जो है वो उसको कन्विंस करना, उसको बताना कि भाई अभी टॉयलेट आ गया। और मैं खुद देख के आया जो कोलाबा में हमने टॉयलेट बैठाया है, वो बीइंग ह्यूमन की तरफ से हमें मिला, कोलाबा मच्छीमार कॉलोनी में जो बैठाया है, एक बहुत ही सुंदर उम्दा अच्छा टॉयलेट बैठाया गया। मुझे तो लगता है कि वो देख के ही जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोग मेरे पास आए, जैसा भी इतना अच्छा टॉयलेट बैठा है कि अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही इसको यूज़ करेंगे। और जैसा आप कह रहे थे स्वच्छता, उसकी सफाई, एक तो हम ये कहेंगे नागरिकों से कि भाई नागरिक जब तक उसकी स्वच्छता अपने ऊपर जवाबदारी ना ले, वो महानगर पालिका तो करेगी ही करेगी, पर जब नागरिक को लगने लगता है कि ये टॉयलेट मेरा है, मेरी कॉलोनी का है, मेरी फैमिली का है, तो वो ज़्यादा साफ रहता है। तो वही आज हम आपसे विनंती कर रहे हैं। इस चीज़ का ब्रांड, सबसे मुश्किल काम जो इसका है, उसके ब्रांड एम्बेसडर आज सलमान जी हमारे लिए बने, इसके लिए मैं उनका इनफैक्ट आपके यहाँ आपके सामने आने के पहले 10-15 मिनट सलमान जी से मैं जब चर्चा कर रहा था तो उन्होंने भी ये मुद्दा उपस्थित किया। इनफैक्ट उनसे मैं और इस बात पे उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे कुछ आइडियाज़ भी दिए, और ये आइडिया भी उन्होंने मेरे सामने रखा कि भाई पानी की क्या व्यवस्था है, अगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो कितने भी हम टॉयलेट बिठा लें उसमें सफाई नहीं रहेगी। तो दो चीज़ों की व्यवस्था अब हम मुंबई की टॉयलेट्स में हर जगह कर रहे हैं। एक पानी और रनिंग वाटर होना चाहिए, अगर रनिंग वाटर पाइपलाइन से ना हो तो टैंक हो जो टैंकर भर के जाए। और दूसरा सबसे ज़्यादा महत्व जो अभी आप में से ही किसी ने उठाया, लेडीज़ के लिए रात को वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। द सेफ्टी ऑफ अ लेडी व्हेन गोइंग टू अ टॉयलेट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो लाइट, बिजली और पानी, ये हर टॉयलेट में ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी तरफ भी अब महानगर पालिका कदम उठा रही है। यू नीड टू, वही है ना कि वो आदत जो बरसों से पड़ी है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बट इफ़ यू सी द टॉयलेट्स, आई थिंक वो आदत बहुत जल्दी टूट जाएगी ओनली इफ़ दे कीप इट क्लीन। कि यू कैन गो टू अ 5 स्टार होटल, लेकिन अगर 5 स्टार होटल के अंदर फिर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो फिर उसमें भी यू नो दैट स्मेल एंड नो वन वांट टू गो इनसाइड, वो हाइजीन फैक्टर। So I've seen the toilets and they are like the best toilets in the world there. जी सर, ये वैसी आप हर चीज़ पहुंचाते रहते हो ना, कभी ये भी पहुंचा दिया करो। हाँ, ये अच्छी चीज़ है पहुंचाना पब्लिक तक के। सो है ना, ये नहीं पहुंचाओगे, नहीं पहुंचाओगे ना ये, हाँ पहुंचाओगे जी। ये यस यस, हाँ वो भी बना रहे, वो बना रहे जी। कैंपेन करेंगे, बनाएंगे इसको। इसमें बीएमसी और बीइंग ह्यूमन का नाम जुड़ा है, तो बहुत सोच समझ के चलेंगे और बहुत करेक्ट तरीके से चलेंगे इसके अंदर, और जितना इसको लाज कर सकते हैं औरतों की लाज रखते हुए करेंगे। जो सर सलमान सर का साथ मिला, इसके बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये जो साफ सफाई का जो ऑलरेडी लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन सलमान जी के साथ के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें कितना फायदा पहुँचेगा सबसे Yes, right now it's 5. हाँ? Right now it's 5. BMC के पास बहुत पैसा है, BMC को being human के पैसे की ज़रूरत है नहीं. They got a lot of money, but from our side we've said 5. So हमारे साइड से भी सिर्फ ये कि नाम आ रहा है वो, just for that. So first 5 toilets, they offered to pay for that as well. This is that we don't need the money, we just need the awareness. But I said कि फिर वो थोड़ा सा फर्जीगिरी दिखता है, तो I didn't want that to happen. So अलग अलग एरियाज़ में लगेंगे, अलग अलग। मेन इशू ये था कि
एक बार जैसे आपने पूछा कि उनके आने के बाद फ़र्क पड़ेगा क्या, जैसे मैंने कहा स्वच्छता रखना या ओपन डेफिकेशन बंद करना, बाहर में जो शौच के लिए बैठते हैं लोग, उसे बंद करने के दो भाग हैं। एक तो टॉयलेट्स देना, टॉयलेट्स तो महानगर पालिका देगी, और सलमान जी से और ऐसे लोगों से और मदद मिले तो वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है, हमारे लिए और भी अच्छा है। इनफैक्ट जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। बस सबसे ज़्यादा बड़ी जो हमारे सामने में चैलेंज है, लोगों की मानसिकता बदलना। ये मेरे को लगता है कि जब सलमान जैसे लोग सामने आके कहते हैं कि भाई ये गलत है, और जैसे उन्होंने बहुत अच्छा कहा, इट इज़ नॉट कूल एनी मोर, ये गलत है, इसको कहीं ना कहीं बदलना है हमने, इस मानसिकता को। फ़र्क पड़ेगा, ये ज़रूर पड़ेगा। और ये मुहिम को हम अब आगे ले जा रहे हैं, और ये पहला मिलियन प्लस सिटी है, 1.25 करोड़ नागरिक हैं आज मुंबई में। 1 मिलियन प्लस सिटी जब ये इतना बड़ा आह्वान स्वीकारती है तो एक देश के लिए भी एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है। एकच मी आज आपल्याला म्हणेल, हा काय टॉयलेट विरोध फेरीवाला किंवा टॉयलेट विरोध हा मोहीम नाही आहे. आपला मोहीम आहे की टॉयलेट बांधणे, विशेषतः या मोहीमचा पहिला भाग आहे की आज जे उघड्यावर शौचला बसतात, पहिला तो एरिया आयडेंटिफाय करणं. तो एरिया आपण मुंबईमध्ये आयडेंटिफाय केला आहे, तो आपण आता केंद्रित केलेला आहे त्याच्यावर आपलं ध्यान, की हे एरियाज आहे, या क्षेत्रात लोक बाहेर बसतात. बसण्याचं कारण काय की इथे टॉयलेट्स नाही. टॉयलेट्स नाही, मग काय करावं, जिथे आपण बांधकाम करू शकतो बांधकाम करणार. तो कम CRZ एरिया आहे, बांधकाम करता येत नाही. दाट लोकवस्ती आहे, बांधकाम करता येत नाही. सीवर लाईन टाकता येत नाही. असे एरियासाठी आपण मोबाईल टॉयलेट्स देतो, पाणीची व्यवस्था करतो, वीजचे कनेक्शन देतो, आणि लोकांना आता विनंती आणि आवाहन करणार की हे टॉयलेट्स आहे, कृपा करून वापरावं. आणि याचसाठी हे कार्यक्रम आज आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात केली. अब वो रेलवे ट्रैक्स वो पुराने ज़माने का टॉयलेट था, अब नहीं है. अब उसको रेलवे ट्रैक्स ही समझो. जी जी, एक आपके एरिया में भी भिजवाएंगे हम. लगता है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बाहर आने के बाद आवाज़ आती है प्लीज शेल्टर. या इस तरह की कोई सुविधा हो सकती है. हाँ, बिग बॉस की आवाज़ आ गई.